तेच मगापासून तोच प्रॉब्लेम होतो सर. खरखर येतोय ना, मगापासून तोच प्रॉब्लेम.
आवाज येतोय का माझा? हो येतोय. Yes. 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 ओके. व्हिडिओ स्टार्ट करूया आपण. सर आपण एक 2 मिनिटं थांबूया. रिच्युअल हा. ऑफ नॅशनल अँथम अँड देन ओके. शुअर. So exactly at Hello, 7 minutes. everybody. I'm assuming that Good people evening, can good evening, see me. Yogesh. And how are you, Sagar? How are you doing? All fine. Wonderful. I'm assuming that Amar is in control of the rituals to be decided. We have 1 minute to go. People are joining in. They will keep joining in. By the time we finish, people will keep coming up. Amit, can we start with the national anthem? So let us request everyone to stand up for the national Bharat Mata Ki Jai. Jai. Amit, there was some issue in terms of the sound. It was breaking, and we were not able to hear it very clearly. It must be some computer issue. I think that must be a computer issue. Sir, But your sound is also coming breaking only. Yeah. Is it clear now? It is better. Wonderful. Very nice. Can I have the arise oath, please? Yes. Yeah, let it be displayed. Shall I start? Yes, sir. Everyone yes, can recite after me. Hello. Yes, sir. Please start. Can you hear my voice? Okay. So let us start. I am a responsible human being. I'm a responsible human being. Ready to support, Ready to support, share and collaborate. share and collaborate. I'll be honest in my actions I'll be I will be honest honest in my actions towards everyone. towards everyone. I will enjoy my journey I will enjoy my journey with a large heart and tolerance with large With heart large and heart and tolerance. towards Arise community and society. towards Arise Arise community and society. I will establish I will establish entrepreneurial brotherhood Brotherhood to strengthen my country and humanity. to strengthen my country. and humanity. Jai Hind. Jai. Jai Hind. Thank you. Over to Niranjan. So, good evening, everyone, and a very warm welcome to this evening. This is Night of Truth, a very famous program, or you can say very enjoyed program by all Arisans and the members throughout the entire episodes of this event.
And today we also have very wonderful guest and a story that he's going to tell us. So there will be a lot of learning for us to look into the Mr. Sagarji's Bhosle's business and entrepreneurship, what they have done and how. Sorry. So I request Dr. Yogesh Pawar to start introduction of him. Let us take to this program ahead. Sure. Thank you very much, Niranjan. And Sagar, can I request you to please switch on your video so we can have an interaction face to face? How are you doing? Yes, hi. Hello. I am doing fine. I am doing fine. Wonderful. Happy to see you, first of all. And I think Same here. Same here. way back 20 years back, we wouldn't have imagined this day. Yeah, so that's Yes. how it is. This is definitely a pleasure, more than an honor. It's a pleasure to introduce Sagar Bhosle, the founder and director of Mr. Fried Chicken Restaurants Private Limited, who has been able to create a beautiful chain of restaurants across the country with a very unique model of how he is able to create that is what we're going to learn. We're going to understand from him. I think there is some nonsense that is happening with my screens. Give me a moment. And so I have always seen him working on very different things for last so many years. We have been college friends, and I think he was one batch behind me or two batch behind me. I don't remember, but Two. from his achievements, Two. it is definitely a pleasure to have him on board today. We have been interacting with for various things, how his model has worked out, and I thought that Horizons will benefit out of this. Sagar, with your permission, this session is recorded, so. Yeah, sure. Yeah, because it goes on our website. It goes for people who probably are not able to attend it, and only the premium members are able to view that. So to begin with, let me tell you, he's an advocate. He's an LB from University of Rajasthan. His college, TYBSc. Both of us are physics students, and Elphinstone College, right? Elphinstone. And more importantly, he is. The word Bhosle comes from Kolhapur, so he's also a very fitness freak guy. Typically, the talim, that is what we call it as, and that's what he's a wrestler. He comes from a diplomat's family. His elder siblings are extremely well established, but his inclination towards business, where I think his generation was consistently moving towards the call centers and the outsourcing mechanisms, he built up his career on a different platform. Of course, a pleasure to have Sagar, you on the call, so that we can discuss today. I think you're the youngest entrepreneur who has come on Night of Truths. And this event, when it used to happen in physical, a lot of crowd used to come in during the physical activities, because it was done on a drink. Okay, so people who have come for Night of Truths, you are now falling into that legacy. Are Pramod Chaudhary ji, who is the chairman for Raj, Mr. Pratap Rao Pawar, who is the founder of so many businesses, and of course the famous Sakal newspaper. We've also seen a lot of people from industrial expertise coming in, sharing. The Ranka Jewelers, Fateh Chand Ranka coming in, he sharing his wisdom about business. This forum, Sagar, is a very, very unique. When we say, why do we call it Night of Truths, is precisely because everything that happens in this 90 or 60 minutes conversation is truth, but only truth. So we have all failed. I mean, it all begins with there. We're all failed. We've all passed. We've all, done nonsense things, and we've all done good things. I think there are few good things that we have done, and probably that's one of the reasons why we have a certain amount of respect. In your case,
where did this idea come from of starting off? But before the idea, before MFC, I would love the audience to understand what were you doing before MFC. Go ahead. Okay. First of all, good evening, everyone. We are starting in time. That's good. To begin with, Namaskar, Hindi, Marathi, English. I will mix it. If anyone is not able to connect, आप question पूछ लीजिए. Yogesh sir, Dr. Yogesh will let me know if there is something communication में काही gap या कुछ किसी के समझ नहीं आया, तो हम उसको reiterate कर लेंगे. कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद डिटेल में किसी को चाहिए होंगी इस पूरे दौरान में फ्लो में, तो वो योगेश सर के थ्रू या डायरेक्टली बाद में आप डेफिनेटली आप क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा और जस्ट पुट अप इन इट, वी विल गेट इट कवर्ड लेटर ऑन. सो अभी मैं एक जनरलाइज फ्लो में जाऊंगा, बट क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तो नाइट ऑफ ट्रूथ नहीं, वो ईयर ऑफ ट्रूथ हो जाएगा. तो उसकी वजह से हम लोग एक बेसिक सेंट्रल लाइन फॉलो करने की कोशिश करेंगे. शुरुआत हुई 1984 में जब मैं जन्मा. मेरा पहला एम कोई बिजनेस का नहीं था. मेरा फर्स्ट एम योगेश सर की तरह ही, वी वांटेड टू गेट इनटू द डिफेंस सिस्टम. सो मैं मिलिट्री स्कूल भी करके हो गया. फिर देन आई स्टार्टेड, मैंने नौसैनिक कर लिया, एनसीसी कर लिया, सी सर्टिफिकेट कर लिया. पहला एम था हमें जाना है डिफेंस, आर्मी और आर्मी, बस. ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना कुछ दिमाग में नहीं था उस वक्त, क्योंकि आए ऐसे बैकग्राउंड से थे. लाइक वो टाइम पे शायद एवरीवन, हर कोई, प्रत्येक जनच एक पर्टिक्युलर पर्सनल चॅलेंज फेस करत त्या काळात. अभी अमीरी आ गई है थोड़ी, इन जनरल बेसिक टीवी आ गए, बहुत से चैनल्स आ गए. हमारे जमाने में तो मैं पुराना होस्ट बोल सकता हूँ कि मेरे टाइम पे टीवी नहीं था. टीवी आया ही बाद में. सो एक आधा घंटा वो दूरदर्शन का शाम का, फिर वो बचपन में चुप के चालू करके दिखना दोपहर को कि कहीं कुछ बीच में दिखा तो नहीं रहे दूरदर्शन. में भी उसी इधर से इधर तक आया. तो आईडी भाईंदर में हम लोग पले बड़े. मीरा भाईंदर 1984 का मतलब इट वाज वेरी, मतलब एक विलेज एरिया कह सकते हैं आप. मैं खुद ही कॉलेज में चिढ़ाता था कि भाई मैं तो दूसरे ग्रह से आता हूँ या दूसरे गांव से आता हूँ. योगेश सर को ये मालूम है क्योंकि योगेश सर ट्रेन में दादर उतर जाते थे और उसके बाद मैं सुनने के लिए चला जाता था. सो ऑल दिस, ये सब चलता था. तो योगेश knows me very well. It is going to be a night of truth, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट कहीं भी जाऊंगा योगेश will catch me. मैं ऐसा कोई महान कार्य करने के लिए इस प्लेनेट पे नहीं आया था. हमें बस आर्मी में जाना था और सब ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए, सर्टिफिकेशन कर लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर. सर भी खुद मराठी स्टेज पे काम कर चुके हैं मेरे साथ. मेरे जस्ट बाद में सर ने वो रोल लिया और सर भी वो कर चुके हैं. सो एक टाइम आया कि सोचा, मैंने बचपन से ही ये सोचा था, बिकॉज भाड़े के फ्लैट में हम लोग पहले से रहते थे. 11 साल तो मेरे बचपन के रेंटल फ्लैट में गए. हमारे गरीबी ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था, क्योंकि वाकई में हम लोग छोटे थे. ये तो सारी चीजें दिमाग में बाद में आती है, बचपन तो बचपन होता है. नो वन नोज एनीथिंग. अभी जाके दिखते हैं तो क्या, हाँ भाई हम लोग नॉट वेल टू डू. रेंटल फ्लैट में थे बहन में, बट मजे बहुत किए. सो वहां से एक था कि भाई गवर्नमेंट जॉब में भी पहला तो आर्मी जाना है. बहन का सपना कुछ अलग था, मेरा कुछ अलग था. सो ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कहाँ एंड कर रहे हो, कहीं वहीं एंड कर रहे हो जहां पे आपने स्टार्ट में तय किया था कि मैं आई विल गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. माय एम्स वर टोटली डिफरेंट. तो वंस वो स्टेज पार करने के बाद, मतलब मैं 117 एसएसबी इलाहाबाद में आई, क्लियर्ड एसएसबी. काफी अच्छे मार्क्स थे, मेरिट में भी नंबर आ जाता था, लेकिन मुझे मेडिकली परमानेंट रिजेक्शन लिया. पीआर बोलते हैं हमारे एसएसबी में. तो हाइट की वजह से 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की वजह से मेरा कमीशन छूट गया. डाउट तो पहले से था बचपन में दिमाग में कि ये शायद अपना नहीं काम है, बट कीड़ा था कि नहीं, ये मैं ट्राई तो कर लूं पहले, उसके बाद देखेंगे जो होता है. सो एक ब्लैंक आइडिया था कि अभी क्या करें, व्हाट नेक्स्ट. सो सिंस मैंने कहा कि वी वर नॉट फ्रॉम वेल ऑफ बैकग्राउंड, तो एक तो बचपन से था कि मुझे पैसा कमाना है और मैं वो कमाऊंगा और मैं वो घर से नहीं लूंगा. सो द मोमेंट आई टर्न 19-20 के रेंज में मेरा कुछ तो एक था, जब मैंने आई जॉइंड अ कॉल सेंटर, बिकॉज उस टाइम पे वही जॉब्स थे जो आपको 12+ में जॉब्स और गुड सैलरीज देते थे.
और मेरे इनहिबिशंस कभी नहीं, कोई ऐसे आई नेवर हैड अ बायस, मुझे ऐसा नहीं था कि ये नहीं करेंगे या ये करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे या फिर ये गलत है या ये सही है। हाँ ऑब्वियसली स्टोरी और कुछ चीजें जो कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कभी कोई काम छोटा नहीं लगा लाइफ में। मैंने बहुत से ऊट पटांग हरकतें की है लाइफ में, सो तो मुझे मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मुझे मुझे पता है कि मुझे मेरा एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना है, मोर मुझे उस दौरान मुझे घर से पैसा नहीं लेना है। आई वांट टू अर्न एंड आई विल सेव दैट मनी एंड आई विल मस्ती भी करनी है, ऑब्वियसली घूमना फिरना है। सो ये करते करते हम एसएसबी पहुंचे, एसएसबी में रिजेक्ट हो गए बिकॉज ऑफ परमानेंट रिजेक्शन ऑफ हाइट। उसके बाद फिर देयर वाज कंप्लीटली ब्लैंक के आगे करे तो क्या करे। एट दैट जंक्चर एक बीच में योगेश असाही काळ आला की ज्याच्यात विचार केला आपण फॉरेनला जाऊया, कारण माझं एक होतं की बिझनेस करायचा आहे आपल्याला, पण आपण काहीतरी एका वेगळ्या दिशेला आता फाइनेंशियली ह्या टाइमाला आई विल जस्ट गो फाइनेंशियली ऑल्सो बाय दिस टाइम हम लोग ओके ओके एवरेज में आ चुके, वी वर एक लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं हमको 99 2000 के रेंज में वी वर इन ओके ओके रेंज में आ चुके। तो ऐसा कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं कि कुछ करना है, बट खुद को था कि नहीं कमाऊंगा तो खुद ही कमाऊंगा, घर से नहीं लूंगा। मेरे पास अभी भी वो पुरानी डायरी है छोटी सी जिसमें मैं पापा से अगर पैसे रहता था महीने के बीच में तो मैं वो लिख के रखता था, 1 रुपया 2 रुपया, तो वो भी है। सो ये करने के बाद आई सेड अभी तो आर्मी इज कम्प्लीटली होने वाला नहीं है, लेट्स डू समथिंग। तो किसी ने कह दिया कि आप फॉरेन चले जाइए, आप फॉरेन जाइए और ये अपना यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन कर लीजिए, और बहुत अच्छे बिजनेस कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया आई वांटेड टू डू होटल मैनेजमेंट एट दैट टाइम, मतलब दिमाग में चल रहा था कि वी विल डू दिस एंड देन वापस आके कुछ तो आइदर गेट इनटू द होटल लाइन और कुछ तो करेंगे। बट आगे का इतना मैं ज्यादा आज तक कभी मैंने ऐसे आगे का सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कल मैं सो के भी उठू नहीं, पर किसी को पता नहीं होता। सो एक एक रफ टाइमलाइन रखना और एक बेसिक प्लॅनिंग करके उसके हिसाब से चलना, हे बेसिक आपण मी करतो। तर त्या टायमाला न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया युनिव्हर्सिटीज वर डुईंग व्हेरी वेल इन हॉटेल इंडस्ट्रीज ग्रॅज्युएशन एंड स्टफ। सो मग मोर्चे बांधणी मराठी में म्हणतो आपण, तैयारी फाइनेंशियल तैयारी, पैसे जमाना चालू, 7-8 लाख का बजट बन गया, सब हो गया। फिर घर वालों से 1-आधा लाख उधार ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करते 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 एक डिसीजन हो गया कि हम न्यूजीलैंड ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे एंड वी विल अप्रोच देयर। उतने में ये वेरी फनी चीज है, मैं आप लोगों को लगेगा अरे ये ऐसे ऐसे ये डिसीजन ले लेते, कुछ ऐसे बेसिक चीजें मैं लाइफ में देखता हूँ तो मैं अपना डिसीजन आई बेस्ड ऑन दैट। मेरे दोस्त के हमारे एल्फिंसन कॉलेज के एक जूनियर बैच के एक लड़के के पिताजी गुजर गए, दहीसर में वो रहते थे। मैं उनको मिलने गया और उनके पापा कुवैत में काम करते थे, ही वाज आल्सो फ्रॉम होटल लाइन। सो हम गए और मैंने देखा कि वहां पे प्रेत जिसको हम शव कहते हैं वो आया नहीं है। तो आई आस्क्ड हिम कि कोई है नहीं, वेयर आर योर रिलेटिव्स, ये कब होगा रिचुअल्स वगैरह। वो बोला भाई अभी 27 दिन लगेंगे, शायद 27 15 27 दिन, कभी डिपेंडिंग के कब वो फ्रेटिंग होगी, वहां से बॉडी कब आएगी। मैं घर पे आने के बाद बैठ गया, मैं बोला यार यहाँ पर चांस है शायद मरने के पहले एक मैं जा रहा हूँ बोलने का मौका मिलेगा घर वालों को। ये फॉरेन में अगर गए और वहीं से निकल गए तो घर वालों को तो बॉडी भी नसीब नहीं होने वाली। तो वो थोड़ा सा मुझे मैं सोचने लग गया। फिर उसी दौरान पता नहीं एक दिमाग में चल रहा था कि आपने बचपन से दिमाग में लिया है साहब कि आपको करना है आर्मी, यानी कि आप कंट्री ओरिएंटेड हो, ग्राउंड ग्रास रूट के लिए ओरिएंटेड हो, बचपन से आप दुनिया भर की जहां मिले वहां मौका फंक्शंस अरेंज कर रहे हो, एक कल्चर आपको चाहिए, आपको एक हेरिटेज जतन करना है, आपको लोगों पे मदद करनी है, तो फॉरेन में क्यों जा रहे हो? यू आर टेकिंग, ऐसा नहीं कि आई एम वेरी जीनियस और समथिंग लाइक दैट, बट एक स्लाइटली अबव एवरेज ब्रेन है आपके पास, तो आप इधर ही करो जो करना है। सागर जी आप यहीं बैठो। सो देन आई स्पोक विथ माय फैमिली कि आई एम नॉट गोइंग, फॉरेन नहीं जाना है मेरे को। सो दे वर लाइक यार तू हमेशा ही ऐसे ईस्ट वेस्ट वाले डिसीजन इतना फटाक से कैसे लेता है। मैं बोला यार बेसिकली इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ समथिंग, आई नो दिस इज नॉट माई नेचर, आई विल नॉट एंड अप डूइंग, मैं ये नहीं करूंगा।
तो दे थैंक, अभी अभी अच्छी बात है कि वो लोग बोलते हैं कि आप भी बोलते हैं कि हाँ भैया थैंक गॉड तूने वो डिसीजन लिया, बट उस वक्त मेरा काफी क्लियर था कि ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये मैं नहीं करूंगा. ये मैं लोगों को भी बताना चाहूंगा, तुम्ही कुठेही जिथेही कम्फर्टेबल एक असतं की आपल्याला ती गोष्ट माहिती नाही आणि आपण त्यामुळे ते अनकम्फर्टेबल फील करतो त्या गोष्टीला करण्यासाठी. आणि एक असते की तुम्हाला क्लिअरली ती गोष्ट माहिती आहे आणि तुम्हाला माहिती तुम्ही अनकम्फर्टेबल आहात ती करताना, ती गोष्ट करूच नका. ज्या गोष्टींमध्ये तुम्ही एक मेंटली तुमचं समाधान म्हणजे समाधान आहे, सॅटिस्फॅक्शन आहे म्हणता येणार, कारण ऑब्व्हियसली कोणालाच ऑफिसमध्ये 9 तास काम करताना सॅटिस्फॅक्शन येत नाही. ते ह्यूमन वृत्ती आहे. पण एक आहे ना की एक हे एक सेंस अंदर का एक आवाज आता है, वो कहता है कि बॉस इसमें गड़बड़ है, वो मत करिए. तो मैंने वो Intuition, नहीं you're किया talking about एंड आई intuition. डिसाइडेड आई विल do some kind of business over here. Yes, intuition, exactly. So I decided let's not go ahead in this parameter, and I started. I एक फंडा क्लियर था, पारसी मेंटालिटी. मैं अंदर से थोड़ा सा पारसी हूँ शायद इसे जेनेटिकली. पैसा कमाना है, मैंने तुरंत कॉल सेंटर वापस से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम है वहां पे पैसा अच्छा मिलता है. और मैं लोगों को और बच्चों को भी बोलता हूँ कि कैसा, एज लॉन्ग एज तुम लोग एटीएम तोड़ के पैसा नहीं निकाल रहे हो, मतलब चोरी करके, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करके उस पैसा से निकल रहे हो. इतना ही मैटर करता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है. आप चाहे गटर साफ करके करोड़ कमा लो, या आप एक कहीं प्रेस्टिजियस जगह पे लाखों कमा लो, या फिर कहीं व्हाइट कॉलर जॉब लेके आप परेशान हो जाओ और आपके पास खाली आ रहे 2000. एटीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता सब. आपको जो पैसे चाहिए, जितने चाहिए वो आप निकाल सकते हो, उतनी कैपेसिटी वाला काम करते रहो आप. तो वो मैंने तुरंत ही मैंने ज्वाइन कर लिया, जॉब करना चालू. उसी के साथ में मैं ऑनलाइन, उस जमाने में गूगल वाज नॉट दैट स्ट्रांग, 2009 2010. सो यू हैड, वो जमाना था योगेश सर, आई एम श्योर ही इज कम अप विद हिज ओन स्कूल, ही मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस. 1 2 3 4 5 10 15 पेजेस आते थे नीचे गूगल के, उन तक जाना, ढूंढते ढूंढते जाना पड़ता था, पूरा दिन ढूंढ रहे. सो दैट इज हाउ आई फाइनली थॉट. उसमें मैं जॉब्स ढूंढ रहा था, जॉब्स नहीं सॉरी, व्हाट कैन बी डन, व्हाट आर द अपकमिंग बिजनेसेस, वर्ल्ड सर्वे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है. तो एक बेसिक चीज बार बार उभर के सामने आ रही थी, ये व्हाइल आई वाज वर्किंग, कि आपका जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो कहता है रोटी कपड़ा मकान. ये 3 चीजें आप कहीं नहीं जा रही, और उसमें भी रोटी क्यों, क्योंकि वो चीज सबसे एसेंशियल है. उसके बाद आपको खाना और मकान दिखता है. ऑब्वियसली मकान और ये कपड़ों के लिए, गारमेंट्स वगैरह के लिए वो तो आया भी नहीं दिमाग में, बिकॉज द इज, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है आज की तारीख में. ये जो हमारा फूड इंडस्ट्री है, व्हाट आई सी एज यंग एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट आई सी, व्हाट एंटरप्रेन्योर्स जो फूड में आ रहे हैं, वो मैं उनसे, अगर कोई है आपके घरों में वगैरह, प्लीज डू टेल देम टू कॉल मी इफ दे आर प्लानिंग एनी फूड लाइन में कर रहे हैं, अगर वो उनका कुछ इंडिविजुअल ब्रांडिंग सोच रहे तो. क्योंकि सबसे पहली बात, फूड हर किसी को लगता है बहुत इजी है, मैं कुछ तो बना लूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं बेच दूंगा. नहीं सर, नहीं. all food lines in the whole food market is super saturated, and just because of a few basic errors जो आप, I will not go into the details, but करना शुरू कर देते हैं because they are under the impression, वो सोचते हैं कि बहुत आसान है हम कर लेंगे, और फिर वो जब शुरू होता है तब बहुत भयानक लगता है. फिर कस्टमर्स नहीं आ रहे, ये नहीं वो नहीं, ये दिस इज व्हाट हैपेंस विद नॉर्मली व्हेन यू प्री प्लान नहीं करते हो. डोंट गो, ये मैं आप वापस से बताऊंगा थोड़ा ज्ञान, कि आपके गोल्स इतने इजी है उस हिसाब से मत सेट करो सर, क्योंकि कोई गोल इजी नहीं है. ये लिख लो आप. देयर इज आई हैव नेवर एवर सीन वन सिंगल गोल which a person has achieved which is easy. आपको बाहर से वो लगता है कि अरे ये तो यार, ये तो मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे ये आता है. नहीं सर, उसके पीछे बहुत से ऐसे फैक्टर छुप के बैठे हैं, जैसे ही आप उसके सामने जाओगे दबोच लेंगे आपको. सो आपका ध्येय यानी गोल
और आपका जो प्लस पॉइंट है वो ऐसे और वैसे भी नहीं फर्क पड़ता. यस, 90% फूड जॉइंट्स ओपन एंड क्लोज इन 6 to 9%. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. It's a very surprising thing. Established brands and franchisees do charge, but definitely try and understand that the charge is because they have learned something in the harder way. आप सोचते हो ये मशीन में सस्ती वाली लेके चला लूंगा काम, वो काम चलता नहीं है, वो पिट जाता है. वही ब्रांड आपको बोलता है इसका एक्सपेंसिव वर्जन लीजिए लॉन्गर रन में. द रीजन इज दैट क्वालिटी मेंटेनेंस. सो हाँ, सो डूइंग दैट ये एक ऐसे हो गया कि एमएफसी का कॉन्सेप्ट आ गया. चलो फ्राइड चिकन, बिकॉज केएफसी एक So I have a में फ्राइड question. चिकन था उस टाइम पे. Sagar, I have a Yes. question. So now that hustle bustle wala Sagar, okay, who wanted to take east-west decisions, now decided to step into something. उसका एक फंडामेंटल क्लियर था कि उसको पैसे कमाने हैं, उसको फ्रीडम चाहिए, दो फंडामेंटली. बट जहां पे लोग, because you have evolved, you've converted that food into a business. You are not running a restaurant. Okay, तो ये थॉट पहले से था या बाद में हुआ? हाँ, I'll come to that. अभी पहले तो एक था कि हमें कुछ स्टार्ट करना है. ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी हैं लोग, क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग रिलेट कर ही लोगे आप लोग, क्योंकि आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है अगर, तो ये चीज जान ले कि जो अभी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल है, अंदर एक जो एनर्जी होती है उसको आपको चैनलाइज करना आना चाहिए. तो वो एनर्जी मुझे कह रही थी कि कुछ करना है अपने को. एक, पैसा कमाना है. दो, फ्रीडम चाहिए. पर फ्रीडम इतना भी नहीं, क्योंकि फ्रैंकली सारे एंटरप्रेन्योर्स और ओनर को अब भी इस वक्त मालूम है कि मेरा सेशन में आप बैठे हो, लेकिन एक कान है फोन पे कि कहीं ऑफिस से कुछ गड़बड़ नहीं हो गई, कहीं किसी स्टाफ का कुछ नहीं हो गया हो कहीं पे. वी आर नेवर एवर फ्री. ये बड़ा जोक है. नन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स आर एवर फ्री. हमारे पीछे कोई ना कोई तो होता है और वो खुद हमारा दिमाग होता है. हम सोते टाइम भी कहीं ना कहीं तो कीड़ा चल रहा होता है, कुछ तो उठते ही हमारा चालू हो जाता है. क्योंकि बॉस को ऑफिस में तो मैं मेरा एक लेक्चर था अभी एमएसएमई का नासिक ईडीपी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल में. तो वो मैडम मेरे को कहती है सर, क्योंकि बॉस ही नहीं है. मैं बोला बॉस को आप बोल सकते हो सर मेरा पेट खराब हो गया आज मैं काम पे नहीं आ रही, अपने आप को कैसे बताओगे कि मेरा पेट खराब है मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ. सो वी आर नेवर एवर फ्री. दैट इज बेसिक. यस, एब्सोल्युटली सर. सो नाउ ये हो गया, तो आई कम टू योगेश पॉइंट. योगेश सरांचा पॉइंट वर आयो आपण की कैसा ये सोचा कि ये इसको कैसे फैलाएं. एक तीसरी बात थी जो एक ये करने के पहले जो एक वो फॉरेन जाने ना जाने के रीजन में भी वो थी और इधर भी वो थी कि मुझे एक ग्रास रूट लेवल पे कुछ तो अपन कर सके, ऐसा कुछ स्टार्ट करना है. सो मेरा एक सिंगल आउटलेट का प्लान ऑब्वियसली पहले नहीं था. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग, वो एक होता ना, बोलते ना मसल मेमोरी हो गया था कि जो भी करेंगे कुछ तो ऐसा रिजल्ट होना चाहिए उसका कि हम तो पैसे कमा लेंगे, हमें फ्रीडम ठीक ठाक मिल जाएगी. टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हाट आई कैन से. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम इज द राइट वर्ड, नॉट फ्रीडम. एंटरप्रेन्योर्स हैव टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एट द मोस्ट. दे आर नॉट फ्री एट ऑल. इस दुनिया में जो आया है, जब तक वो सोलर पावर पे नहीं चल रहा है, वो शायद वो कोई मिल गया जादू ही था जो फ्री था इस प्लेनेट पे, जो सोलर पावर पे चल जाता है. जब तक आपके पास पेट है, आपको भूख है, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, या तो आपका लास्ट नेम अंबानी है, कुछ तो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. सो वही एक है चांस कि आप फ्री हो. बट ये भी था ना कि मुझे कुछ करना है तो वो मेरे को किसी के लोगों के लिए भी पहुंचना है. आई नीड टू रीच टू द पीपल. सो व्हेन एक होता है लॉन्ग टर्म, मैं जब भी सेशंस में वगैरह भी बताता हूँ कि इवन दिनचर्या आपकी जो डे टाइम टेबल है, आपका जो डेली डिसिप्लिन है, वो आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करिए सर. एक होता है जो आपको दिन भर में करना है, एक होता है आपको जो हफ्ते भर में करना है, एक होता है जो आपको साल भर में करना है. ये इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, स्लाइटली मिड लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, ऐसे गोल्स डिवाइड कर लो आप. जो आप काम तभी कर रहे हो पूरी एनर्जी उसको लगा दो.
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसकी प्लानिंग कर रहे हो आप, मतलब ये तो था कि कुछ तो करना है ऑल ओवर, बट अभी पहले ये वाला तो कर लूं, ये तो चले, क्योंकि है तो एट द एंड ऑफ द डे लोअर मिडल क्लास से आए हुए. मम्मीची शिकवण होती लहानपणापासून, बिकॉज शी वॉज अ टीचर, बीएमसी टीचर होती, तर जाम स्ट्रिक्ट. त्यामुळे एक माहिती होतं, एक तो पता था कि बॉस किसी का 1 रुपया वेस्ट नहीं करवा सकते इन्वेस्ट करा के, तो तू जो भी करेगा भाई ऐसा प्रॉफिटेबल ही करना जो आरओआई ऐसा है जिसका कि उसकी वजह से किसी का 1 रुपया नहीं डूबे. Even though it's business, even though we tell our there are risks, but ये मैं लीगली क्लियर रहने के लिए अपने आने वाले पार्टनर्स या फ्रेंचाइजीज को बोलता हूँ, लेकिन मन में मेरे में वो नहीं रखूंगा. मेरे को जो भी स्टडी करना है, मला जो ही स्टडी करायचं आहे, I will do that to the T, because someone else shouldn't fail because of me, because of my laziness or because of my blind side. तो ये योगेश सर ये होता कि जेव्हा पहिला आउटलेट झाला तो पूरी एनर्जी थी फर्स्ट आउटलेट बनाने में, कॉपीराइट ढूंढ के निकाले थे, ट्रेडमार्क करना जरूरी है, ये सब कर दिया था अप्लाई, मतलब आगे की तैयारी थी. बट पहला आउटलेट रन, उसके साथ में ये भी लॉक इन था कि फर्स्ट आउटलेट जब तक आपका चलता नहीं है तब तक आप ये इसको रेप्लिकेट करने का सोचोगे भी नहीं. ये पहले एकच कर, एक मराठी में एक कहावत है, शायद हिंदी वालों को पता हो, एक ने धड 12 बार चिंध्या, ते नाही करायचं आपल्याला. तो हो, एक भी ठीक से नहीं कर रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव वन इन द हैंड रादर देन टू इन द बुश. वो वैसा वाला फर्स्ट जो है उसको किया, उसको रेप्लिकेट करने का सोचा भी नहीं पहले, इसमें पहले 2-3 इसमें, फिर 1 साल ऑन सीजन ऑफ सीजन में, तो पहले ये साल में एक हालत ऐसी हो गई थी कि जेब में 1 रुपया नहीं था. एक्चुअली वन सिंगल डे इट वाज आई एम सिटिंग देयर विथ ओनली 10 रुपीज इन माय पॉकेट. एक शाम ऐसी भी थी, ऐसा नहीं है, ये आ गया ना ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ सर. मोमेंट ऑफ ट्रुथ आपको मैं बताता हूँ, पहला ऑन सीजन धपाधप पैसा आ रहा है जा रहा है, वो होता है ना एक, वो गरीब के हाथ में सोने का कटोरा तो भीख मांगता, वो मैं था उस टाइम पे जब ऑन सीजन चल रहा था. भाई बहुत पैसा आया तो उड़ा भी दिया तो उड़ा भी दिया. ऑफ सीजन आया, अभी क्या करे. तो मेरा एक आदत था, एक 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 वडा पाव इज माय वीक पॉइंट. योगेश सर नो दॅट, बिकॉज हम लोग कोर्टाच्या मागे वडापाव आणि त्यानंतर केळी अर्धा एक एक डझन केळी खायचो आम्ही, बिकॉज वी वर ऑल स्पोर्ट्समैन एट दैट टाइम. तो लंच में टिफिन खाना, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर खा ली तो वड़ा पाव एक आधा खाया, बिकॉज ऑब्वियसली जेब में पैसे नहीं होते थे ज्यादा के लिए, पर केले खाना, ये तो वड़ा पाव हैज ऑलवेज बीन माय वीकनेस. तो मैं हमेशा शाम को वड़ा पाव अगर मंगाऊंगा तो साफ के लिए भी मंगाऊंगा. एक शाम ऐसी थी, 4-4:30 बजे का टाइम था, मैं रेस्टोरेंट में कॉर्नर में बैठा हूँ, स्टाफ ने मेरे को चिल्ला के पूछा, सर वड़ा पाव मंगा रहे, आप खाओगे क्या? जेब में 10 रुपया, बाइक में पेट्रोल ठीक ठाक आने जाने का. मैंने ना बोल दिया क्योंकि मुझे मालूम है अभी सर वड़ा पाव मंगा रहे हैं तो सर को ही पे करना पड़ेगा ना, तो अपनी जेब में तो है ही, कहाँ से मंगाओगे. बस वो मोमेंट था कि उस टाइम पे घर पे जाते रहे, मैंने सोचा कि ये सिचुएशन वापस आने देनी नहीं है अपने को. वी हैव, तो एक होता है ना कि इट इज मैंने ये बोला ना, मैं ये सोचता हूँ कि जीतना और हारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कभी भी, फ्रैंकली. वो शसा खरगोश ये सारी स्टोरी तो ज्यादा बिलीव मत करो. ये सारे कैपिटलिस्ट लोग ने बनाए हुए पोर्शंस के जो फंडे ना, वो आपको ब्लॉक कर दे दें. किसको फर्क पड़ता है खरगोश जीता या वो आपका टोटॉइस जीता, किसने देखा है जाके वो रेस हुई भी थी नहीं हुई थी. आप जो करना है वो आप करो. अगर स्लो जाओगे तो आराम से जाओगे, फास्ट जाओगे तो आप मस्त नजारे स्पीड में देखते हुए जाओगे, और एंड में जाके आपके पास टाइम भी बचेगा. जीतना और हारना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप क्या फर्क पड़ता है. नेपोलियन मर गया, वो अलेक्जेंडर भी मर गया, हाँ सारे तो मरने ही है, ये जीत के वो हार के वो करके. तो इसके लिए डोंट बॉदर अबाउट विनिंग एंड लूजिंग. जस्ट एक चीज आप ठान लो कि जीतना है या हारना है, इसके परे एक चीज है, वो है वापस स्टार्ट करना. आपका गिरना तय है सर, क्योंकि आप चल रहे हो. जो नीचे गिरा हुआ होता है वो कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे. सो डोंट बॉदर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि मैं ये ट्राई करके जीता, मैं पिट गया, मैं ये फिल्मी स्टाइल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग वो
फेसबुक वगैरह पे मैं पढ़ता हूँ KFC के बुड्ढे ने इतने साल में स्टार्ट किया, वो स्टैनली ने 70-60 ईयर्स में स्टार्ट किया। भाई दैट इज वन ऑफ द केसेस, ठीक है। वो दुनिया में हार्डली 0.5% पॉपुलेशन के नसीब में वो नहीं रहा। हम है अपन है एकदम आम आदमी, गरीब लोग, जनता, हमको मेहनत करके ही ऊपर जाना है। ये आपको कहीं किसी दिन अलादीन का जीनी मिल गया, उसने दे दिया आइडिया, तो आप नसीब वाले हो सर। तो वो इसमें लोड मत लो कि आपका आइडिया चलेगा नहीं चलेगा। यस, बट एट द सेम टाइम रीड ओनली। यस, थैंक यू सर। तो आप ये सोचो ही मत कि आपका आइडिया चलेगा नहीं चलेगा। अगर आपको कोई आइडिया समझ में आ रही है तो उसकी स्टडी करिए। एक, क्या वो मार्केट में दूसरे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप स्टडी करें। ये नहीं कि ये काम छोटा है या बड़ा है या ये बहुत ज्यादा, उसके जो एक, हम सब फ्रैंकली स्पीकिंग एक काइंड ऑफ राइट रेस के प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स है। वी आर जस्ट अ मैकेनिकल बाई प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज बीइंग रन फॉर इयर्स एंड इयर्स। इसके लिए मैं एक एंड में सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, वो बात लेट मी पुट अ पिन ऑन इट। हाँ, सो तो वी विल इज बेटर कि हम इन सब चीजों से अलग रहें, स्पेशली ऑल द पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स जो अभी स्टेबल आए हुए हैं, वो सबको ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्योंकि मेरे को मालूम है ना, उस टाइम पे अगर मैं छोड़ देता, वापस जॉब पे लग जाता, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं वो भी कर रहा था ना, मैं जॉब क्या, मैं तो कॉलेज जाते टाइम हो, मैं भाईंदर से चर्चगेट जाता था, 1.5 घंटा लगता था उस टाइम पे ट्रेन को भाईंदर से चर्चगेट जाने को। लेकिन मैं बहुत मस्ती करते हुए जाता था, लोगों से बात करते हुए जाना, गाने सुनते हुए जाना। वो बाद में है क्योंकि मोबाइल कभी थे नहीं। एक आई थिंक सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में वगैरह मोबाइल आने शुरू किया, वो छोटे छोटे MP3 प्लेयर टाइप ऑफ चीज आने लग गई, गाने सुनते जाओ। ये आप गलती से भी मत भूलो कि जब ये आप मेहनत मशक्कत कर भी रहे हो ना, ये धक्का बुक्की चल रही है, ये सबकी होती है, जस्ट ट्राई एंड एंजॉय दैट एज, वो भी एंजॉय करते हो जाओ। ट्रेन का सफर हर कोई जाता है, लेकिन बॉम्बे में सबसे पहली एंड बेहतरीन चीज मुझे पता चलती है, लोगों ने देखना सीखने जैसी है, कि वो लोग हार्डली 10-20 हजार 30 हजार कमाने वाली पब्लिक है, भयानक भीड़ में जाते हैं आ रहे थे। सारे के सारे वैसे नहीं जाते, कुछ 10 चेहरे लेके जाते हैं और 10 चेहरे लेके आते हैं और मर भी जाते होंगे, पता नहीं किसको पड़ी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दोस्ती यार ये करते हुए, गाने गाते हुए, मस्ती मजाक करते हुए आते जाते हैं, दे एंजॉय देयर बेस्ट। वो लोग बनो आप। ये लाइफ में भी लागू है ये, मतलब नहीं तो पता। आई आई योगेश, आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग इधर उधर बहुत ज्यादा, मैं यहाँ No, वहां that's फैलता okay. जा That's रहा हूँ okay. अपने Flow, no एक्सपीरियंस। problems. If there is anything that तो want more to be spoken, I'll ask you to do. Go ahead. No problem. श्योर श्योर। सो एक चीज मेरे को मतलब ये काफी आगे आ गया हूँ मैं अभी। ये KGF की स्टोरी में वो कैसे आगे चला जाता है बहुत ज्यादा, फिर वो रिपोर्टर खींच लेता है उसको, तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ बता के पहले। मेरे को रिसेंटली मैं बहुत घूमता हूँ, पहली बात तो आई रोम अराउंड अ लॉट, कार लेके निकल जाना, 11-11, 15-15, 17-17 दिन जाके वापस आ जाना, और फिर कोई स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट खत्म करना, नेशनल पार्क, टाइगर फोटोग्राफी के लिए जाना, लेपर्ड फोटोग्राफी के लिए जाना, लेपर्ड काउंटिंग के सेंसस के लिए जाना, टेक्स्ट पे जाना। तो एक ऐसे किसी में फोन नहीं लग रहा था मेरा, तो बाबा आमटे ग्रुप से, जे बाबा आमटे फाउंडेशन है जो सबको पता है, सोमनाथ प्रकल्प वगैरह, सो आई हैड गॉन फॉर कैंप ओवर देयर। तो वहां पे किसी से मुलाकात हुई, बच्चे यंग जनरेशन से, उसमें से एक किसी ने मेरे को फोन किया और बोला कि मेरे फ्रेंड को UPSC करना है और एंड ही वांट्स अ गाइडेंस। तो मैं बोल के मेरा नंबर दे दो और मैं बात कर लेता हूँ। सो मैं उसके बाद चला गया जंगल में, 3-4 दिन हम लोग लेपर्ड के पीछे, लेपर्ड हमारे पीछे, ऐसे हमारे साथ चल रहा है, नाइट शूट चल रहे हैं, कैलकुलेशन चल रहे हैं, कितने लेपर्ड कौन कहाँ पे, बच्चा किसका का, वो सब, मतलब दैट इज माई शौक। तो वो सब करके मैं बाहर 2 दिन बाद मिला, तो मेरे को मैसेज आया, SMS वगैरह सब आए कि किसी लड़के ने इतना फोन और मैसेज किया है। मुझे लगा बाप रे बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैंने उसको कॉल किया तुरंत, मैंने बोला हाँ बेटा बोलो क्या हो गया। सर मेरा 12th का एग्जाम हो गया था लास्ट ईयर, और मैं अभी 13th में आ चुका हूँ, और मैं आपको इतना फोन ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं बोला क्या बाबा आता है फीस हवीगी का। तो मैं बोला कि क्या हो गया वो तो बताओ भाई। तो बोलता है कि नहीं सर, मैं मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। मैं बोला हाउ।
So he's like, sir, all my fellows who are with me, उन्होंने यूपीएससी क्लासेस ज्वाइन कर लिए, उनका 1 साल का ट्रेनिंग हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है, अभी मेरा क्या होगा? मैं बोला बाप रे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, ये तो और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, छोटा बच्चा है बेचारा। अभी ये पीयर प्रेशर करते घर वाले भी तो खुद है ना यार, घर वाले ही खुद, और फिर बाद में कुछ हो जाता है, बोलते हैं और क्या हो गया बच्चा, तो वो मुझे हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ यार मेरे को पता है यार, बेटा आपको पता है क्या आपका डेथ का डेट जीसस वगैरह तो नहीं हो ना, आपको पता है कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ? वो बोलता है नहीं नहीं सर, मुझे नहीं पता है। मैं बोला तो यार मेरे को बताओ, ये स्पीड से तुम जा रहे हो, चलो 1 साल तुम्हारा वेस्ट हो गया, मैंने तुमको कोई कान मंत्र दिया, उसे तुम एकदम सक्सेसफुली पास हो गए, लेकिन तुमको पता नहीं तुम कब मरने वाले, तुम एग्जाम पास हो गए, तुम मेरिट लिस्ट में आ गए, इंटरव्यू पास हो गए, तुमको अभी भी पता नहीं तुम कब मरने वाले, तुमने ट्रेनिंग खत्म कर ली, तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंकर, और अपने स्टेट कैडर के फेवरेट IAS, तुम पहले दिन कलेक्टर की चेयर पे बैठे हो, साइन करने के पहले ही तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, तुम मर गए। फिर बोलता है सर, मैं बोला बहुत बुरा होएगा ना? बोलता है हाँ। मैं बोला तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो गई वो IAS एग्जाम से ज्यादा? उस टाइम पे तेरे को लगेगा ना, ओ शिट यार मैंने तो घूमा ही नहीं, मैं दोस्तों को मिला ही नहीं, कॉलेज में तो मस्ती की ही नहीं, मैं तो ऐसे कवारा ही मर रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं हुआ एग्जाम देने का। तो बोले तो क्या कर लिया सर आपने? तो देन स्लोली इट स्टार्टेड सिंकिंग इन। मैं बोला देख भाई, ना मुझे पता है, मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं कहीं यहाँ पे टप गया है, यहाँ पे हाईवे पे, किसको फर्क पड़ने वाला है? हाँ, क्या कौन सी रेस में आके कोई आया है आज तक? भाई हम लोग में से कोई आया है? नहीं, IAS के लिए अलग कैटेगरी है, बिजनेसमैन के लिए अलग कैटेगरी है, कोई आया है? हैज एनीवन कम बैक अगेन? यस सर, दैट इज ट्रू। मैं बोला सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लर्निंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द आर्ट ऑफ चिलिंग। चिल करना सीख भाई पहले तू। 1 साल गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरा जिंदगी खत्म हो गया। तेरे को मालूम है कि 50 साल मेरे पास है, उसमें से 1 वेस्ट हो गया, अभी मेरे पास खाली 49 ईयर्स है, अभी मैं इसमें क्या करूंगा? नहीं ना। तो फिर उसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? आपको सबको मैं ये बोलूंगा कि हर वक्त में प्रॉब्लम्स, ये थिंकिंग आती है ना, वो शिट मैं मर गया, मेरा एंड बच गया, ये आया है बिकॉज दिस इज ऑफ योर, ये सर्कस वाली ट्रेनिंग है ये हमें। हम सब पैदा तो होते जंगल के शेर, लेकिन ये सोसाइटी का रिंग मास्टर हमें मार मार के, हंटर, सिटी बजा के, टेबल पे चढ़ इधर उधर, ये सर्कस का शेर बना देते हैं सोसाइटी। तो ये पीयर प्रेशर है ना। अभी सोचो ना, 350-400 किलो का एक इंडियन टाइगर होता है, और वो 70-80 किलो का छोटा सा वो रिंग मास्टर टाइ, और उसके हाथ में होता है हंटर। ऐसा भी नहीं कि AK-47 लेके खड़ा है वो। टाइगर ने टपली भी मारी तो वो मर जाएगा आदमी, लेकिन टाइगर नाचता है उसके इशारे पे। तो ये होता है ना, उसके भी होगा ना। दिस एनिमलिस्टिक ट्रेनिंग हैज कम, दिस दिस ये बीस्ट को जैसे कंट्रोल किया जाता है बचपन में, वैसे हमें भी टेम करके एक जगह पे लेके जाया जाता है, जहां पे हम ये सारी चीजों में होते हैं कि 1 घंटा वेस्ट हो गया, 5 मिनट वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिन वेस्ट हो गया, ओ शिट ये डील मिस हो गई, ये फ्रेंचाइजी चली गई, वो मार्केटिंग का लॉस हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? आप मरे नहीं हो ना, बस be happy about that first. Be happy about small things every day. Once you wake up, be happy की तुमची सगळं अंग धडधाकट चाललंय. जर एखादा अवयव चालत नाहीये तो बी हैप्पी की एटलीस्ट सांस चल रही है, मरे तो नहीं हो ना। सो गो दैट वे। तो ये मेरे पता नहीं, बिकॉज is this a concept of living in as is, living in present, living minimalistic? Because you'll be surprised to know there could be whatever people, the number of people that are there right now, they must be seeing your talks and visualizing, because I know most of them seeing your talks as how they are, because everybody's a businessman, everybody's an established businessman here. So the fact here is, while you are actually talking right now, I'm 100% sure they would want their next generation to be like that, a little more fearless, a little more going on their track, taking our moving forward on the legacy, all of that. More importantly, Sagar, while this is the philosophy, I have now understood the philosophy that you have. The philosophy is take one step at a time, plan whatever you can, and give the best in that. All right, if that's the philosophy. Moving on to from that entire, एक छान उदाहरण दिलं आता की
that boy was worried about how his future is going to be. But is the boy worried about what the present is? Right? So that micro Exactly. and macro perspective हे गरजेचं आहे, व्यवसायातही गरजेचं आहे, आयुष्यातही गरजेचं आहे. I have a question now. Correct, The correct. question is probably when so I understood the story that idea came up. You wanted to prototype that idea. You prototyped that idea by establishing the restaurant. उसपे पूरी जान लगा दी. And then slowly and steadily you established probably one of the finest franchises today in the country. So how that process started? What is your way of actually finding out right partners? Because getting partners or getting franchise, so a lot of our people here are manufacturers, right? How do you find that partner? Because they also want to find vendors, they want to find suppliers. Okay. Correct. What is your Correct. methodology of finding the partners? And the very important element is, what is your mindset while you look at a partner? What is your mindset? Go ahead. Correct. Correct. So मैंने कहा था ना वो 10 रुपए बचे, फिर मैं घर पे आया, फिर उस दिन मैंने तय किया कि नाउ इट्स टाइम फॉर स्टेप 2, लेट्स रीआइटेट. सो गिरना है, मैं गिर चुका हूँ अभी पूरी तरह से. अभी देयर इज, क्योंकि एक बार आप गिर जाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, उसके नीचे तो जा नहीं सकते खड्डा खोद के, जहाँ पे भी गिरोगे वहीं से उठना है आपको. तो आई सेड लाइक लेट्स गो अहेड नाउ. देन आई स्टार्टेड चेकिंग आउट फॉर फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइजी क्या चीज है कि वो था बैक ऑफ द माइंड. आई सेड लाइक फर्स्ट मैं ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लानिंग अ ट्रिप, मुझे ये स्टे करना है, दिस इज माय मेन गोल, बट ये रास्ते से जाऊंगा, दिस इज माय मिड टर्म गोल, एंड माय शॉर्ट टर्म गोल इज कि कल मैं ये लोकेशन पे रहूंगा, फिर उसके बाद अगर जी गया तो अगले दिन ये लोकेशन पे जाऊंगा. दिस इज हाउ आई डू. सो सिमिलरली कि मेरा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो चुका है, एक आउटलेट बन चुका है, अभी उसके ऊपर हम स्टडी करना चालू करेंगे. तो मार्केटिंग, सेल्स, इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी चीज हुई. देखो आप अगर मतलब है ना, हम व्हेन आई जॉइंड कॉल सेंटर्स, पीपल इन इंडिया हैड दिस वियर्ड मेंटालिटी, ओल्ड जनरेशंस, कि ये कॉल सेंटर गड़बड़ जॉब होता है, इट्स मतलब ये ठीक नहीं है टाइप, वो टिपिकल बुढ़े टाइप रहते हैं, वो ऐसे बोलते थे कि अच्छा चीज नहीं है करके. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट मेरा जो ओवरऑल सेल्स मार्केटिंग स्किल्स जो शार्प हुआ, एक तो एनर्जी अंदर मेरे था, वो तो सबके अंदर होगा. जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैज टू बी डैम एनर्जेटिक, वो होना ही है, उसके अंदर एनर्जी होती ही है. जब वो एनर्जी को चैनलाइज सही से करते तो वो सक्सेसफुल हो जाता है. सो वैसे ही चैनलाइजिंग और शार्प बोलते ना एज, जो एक्यूमेन घिसना चालू हुआ, वो काफी हद तक उसके अंदर कॉल सेंटर वाज एटलीस्ट 20-30% स्ट्रेट अवे कॉल सेंटर का हाथ था उसके अंदर, प्रोफेशनलिज्म में, या जो ओवरऑल एटिकेट्स, बिजनेस एथिक्स, और जो एक ट्रीटमेंट है इंटरनल एक्सटर्नल, जो मैं योगेश सर से बात करता उस दिन, डॉक्टर योगेश है, आणि आम्ही बोलो तो कि इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर ट्रीटमेंट, ये वहां से आया है. सो यूजिंग ऑल दैट आई केम बैक विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months. मैंने रेट्स वगैरह प्रॉपर किए, सारा सिस्टमैटिक मार्केटिंग ये वो सब स्टार्ट कर दिया, वापस से सब चालू हुआ ठीक से. और फिर देन आई सेड ला इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप अपने को स्टार्ट करना है. फिर वो आया mfcindia.in का कॉन्सेप्ट के एक वेबसाइट बनेंगे. उस जमाने में बहुत इसका था. फिर फ्रेंचाइजिंग क्या है, ऑनलाइन बैठना, 10-10, 15-15, 16-16 पेजेस तक डालना गूगल पे, मतलब 11 बजे आना घर पे, उसके बाद में लैपटॉप पे बैठना. वो जमाना भी वैसा था कि लोग लैपटॉप पे घर वाले देखते थे, रात को क्या करता है इतना देर तक, कुछ गलत ही नजर से देखते थे लोग भी, ये 3-3 बजे तक क्या करता है. मेरे को मेरी बहन फोन करके बोल रही है, मम्मी बोलते रात्रि तू सोता नहीं है करके, क्या हो गया, सो जाए कर टाइम पे. बोला यार कुछ चल रहा है भाई, मेरे को करने दो कर. ऐसा 3 महीने तक आई स्टडीड व्हाट इज लीड जनरेशन ऑनलाइन, जो ये यूडेमी वगैरह के कोर्सेज आज आए हैं, और कैसे लीड कैसे जनरेट करनी है, हाउ. उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम था नहीं, फेसबुक था, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह, फेसबुक लाइक कैसे बढ़ाना है, ट्रैफिक कैसा जनरेट करना है, तभी एसईओ ये वर्ड भी नहीं था, जो एक एसईओ आज एक कॉमन वर्ड, हर कोई जानता है. वेबसाइट का एसईओ करना है, साइट ऑप्टिमाइजेशन करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, ये तभी था भी नहीं. ऑर्गेनिक लाइक सेओ
तो वो मैंने ढूंढ के पढ़ना चालू किया। 2-3 महीने में थोड़ा आइडिया आया। फिर एक ओवरऑल जो एक मॉडल डेवलप हुआ था उस वक्त तक, उसको रिफाइन करना चालू किया, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत से फ्लॉज थे। सो एक लोकेशन टू लोकेशन फ्लॉज भी होते हैं काफी। तो वो रिवाइव इस लोकेशन पे क्या होगा, करते 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 मैंने पहला फ्रेंचाइजी लाया, जो आज थाने में 7 साल ऑनवर्ड्स स्टिल रनिंग अप एंड वेल। थाने में 5 पकड़ी करके एरिया है, सिटी, थाने सिटी। इट्स वो हमने 14 अक्टूबर को 14 फरवरी को 2000 में 2014-15 में कुछ 7 इयर्स रनिंग, तो आई थिंक इट इज 15 आई गेस। तो वो तभी पहला आउटलेट हमने दिया एज अ फ्रेंचाइजी। अभी एक बात आपको पकड़ के चलनी है कि एक होता है एक बेसिक इंट्यूशन, और मतलब एक होता है, मेरा दोस्त कह रहा है कल ही मेरे को, उसने बोला था, ये बड़ा फनी डायलॉग लगा मेरे को, बोलते एक होता है सपना और एक होती औकात। तो सपने अच्छे देख लो बेटा, लेकिन औकात मत भूलना हो देखते देखते। तो ऐसा तो होने ही वाला नहीं है कि आपको सारे कस्टमर एकदम हरिश्चंद्र की औलादे मिलेंगी सारे। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स एट द एक्सटर्नल बेसिस, एक्सटर्नल कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके वेंडर्स वगैरह है, चांस ही नहीं है कि आपके जैसा कोई होने वाला। तो एक होता है ना कि यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। इट इज, लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, इज व्हाट आई से, इट्स मेजरली ग्रे। तो आपको ये ग्रेज में खेलना सीखना आना चाहिए। तो एक आपको अगर किसी को, मतलब व्हाट आई फील, कि आपको अगर किसी को परखना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नवरा भाई को 40-40 वर्ष, 30-30 साल शादी के बाद भी कुछ ऐसे कांड कर बैठे, दोनों में से एक के दूसरा वाला सोचता है ये क्या है करके। तो अगर वो नहीं जान पाए एक दूसरे को, तो आप 1 घंटे में कौन सा पहचानने वाले हो किसी को। आप सिंपल एज दैट एक रूल रेगुलेशन बना लो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बेसिक 10-15 चीजें मेरी ये फॉलो होनी चाहिए, मतलब चाहिए। फिर ये 10-15 चीजें ऐसी हैं जो ग्रेज में चले, ये हो गया आपका व्हाइट। फिर एक होता है ग्रे एरिया, जहां पे ये 10-15 चीजें हैं जो मेरा वेंडर अगर 19-20 करेगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर। वो और आप अलग अलग इंसान है, इट्स अ कंप्लीट डीएनए सेटअप विच इज डिफरेंट। ही हैज गॉट हिज डायनामिक्स डिफरेंट। जो एक सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर बचपन से होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई बुरा या अच्छा होता है, हर कोई अलग अलग होता है, इज व्हाट आई से। हाँ, कुछ चीजें होती है जो कम्प्लीटली ब्लैक जैसे कुछ होते ही, साइकोटिक किलर्स वगैरह, डेफिनेटली मैं उनको जस्टिफाई नहीं करूँ, बट मेजरली काफी बार ऐसा है कि वो शायद अलग सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोसाइटल इम्पैक्ट से आया हुआ है। तो आप उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टिगेट करने बैठ जाओगे तो ये कैसे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा सर, एज सिंपल एज दैट। सो आपको जो चाहिए एज ये, इसके लिए ना योगेश सर, सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो जो इंड्यूशन वाला जो आपने बोला ना करेक्टली, वैसा एक अपने आप को जानना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, इसके पीछे की क्या वजहें हैं, और क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, एक अपने आप को परखते रहना। वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ची एकदम बेस्ट कहावत है इंग्लिश मध्ये, जे मैं हिंदी में एक उसका एक समरी दूंगा कि आपको आप अगर ट्रू जेंटलमैन हैं तो आपको किसी और के साथ compete नहीं करना है। आपको, आप कल क्या थे आज क्या हो उससे compete कर रहे हैं आपको, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो इसके लिए क्या है, जरूरी है कि हम कहाँ थे और हम आज वहां पे पहुंचे, वो बीच की जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी आपने, जो कि उसको नोट करते रहोगे तो आप, एक तो ये तो कॉमन कॉमन है, किसी को मालूम है कि मैंने क्या क्या किया, तो उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो अगर मैं ये करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो मुझे ये वो चीजें निकालिए, वो पॉइंट्स निकालिए। आपको वेंडर्स या मार्केटर्स ढूंढ रहे हैं ना, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस एक लेवल पे लाया है, तो उसका रीजन होगा शायद आपने क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन की है, 70% आपने क्वालिटी मेंटेन की मे बी। तो वेंडर 70% मिनिमम क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, ये आप डाल दो रूल नंबर 1। आप जो करके जहाँ पे आए हो वो सारी बेसिक चीजें आप नोट डाउन कर लो कि ये करना जरूरी है बॉस। इसके बाद अगर वो पैकेजिंग में कुछ 10-20 19-20 का फर्क आए तो चलेगा, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मटेरियल जो बेस प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम जाना चाहिए। तो एक नेचर होता है जब आप बात करते हो लोगों से तो वो क्लियर होता है।
चिंदी लोगों से दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, क्राइम पेट्रोल जो वो आपको कभी कभी ऐसा लगता है, ये फ्रैंकली मैं बताता हूँ योगेश सर, ये आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे पॉइंट में हो कि आपको वो सेल जरूरी है, यू नीड दैट, और उसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज कुछ ज्यादा कर जाते हैं लोग, मेरे को ये चाहिए यार, मैं ये थोड़ा सा ना मैनेज कर ही लेता हूँ करके। नहीं, वो खून चूसने वाला आदमी है, वो खून चूसने वाला ही मरने तक रहने वाला है। बेसिक कैरेक्टर किसी का चेंज नहीं होता, हैबिट्स कैन बी कंट्रोल्ड बट बेसिक जो है वो नहीं चेंज होने वाला है। सो ये वैसा हो जाएगा कि आपने सांप घर पे लाया जहरीला, और उसने आपको सोचा कि नहीं मैं इसको दूध पिलाऊंगा तो ये पालतू हो जाएगा, ये आप मूर्ख हैं, आप बेवकूफ हैं अगर आप सोच रहे कि एक सांप के काटने से मैं नहीं मरूंगा और वो दूध पिएगा। अरे वो जानवर है यार, वो उसका काम ही है डसना, वो डसेगा ही आपको। सो डोंट डू दैट एट ऑल। तो ये बेसिक वेंडर, अब हम फ्रेंचाइजीज जब ढूंढते हैं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखता हूँ, क्या वो आदमी मिनिमम बेसिक पैसा खर्चा जितना करना चाहिए वो करने में आनाकानी कर रहे हैं क्या। कुछ लोग होते हैं जो, ये इंडियन नेचर है बार्गेनिंग का, भैया जी एक 5 रुपए तो कम करो, और तो जब तक धनिया पत्ता मिलता नहीं है तब तक वो भाजी वाले से लेंगे नहीं, और वो धनिया भाजी वाले को भी मालूम होता है कि ये सेल पक्का अगर मैं एक्स्ट्रा थोड़ा दे दूंगा तो वो, दिस इज इंडियन नेचर, वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स, वी आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट कटिंग वाले लोग हैं हम लोग वर्ल्ड में। तो आप जिससे डील करने वाले वो भी अगर इंडियन है तो आप ये समझ के चलो कि वो करेगा। पर एक होता है ना कि थोड़ा बहुत ये सेम इंडियन बिहेव कर रहा है मेरे जैसा ही जीना, फिर जहां पे आपको ऐसा लगेगा यार ये मैं ये नहीं करूंगा ना, वो वाला जहां पे आएगा ना, उधर आप पहले ना बोलने के पहले ये सोचना कि क्या वाकई में उसके पॉइंट में दम है, क्या वो जो बोल रहा है इज इट मेकिंग सेंस। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि हम तो ब्रह्मा नहीं है, हम विष्णु नहीं है ना महेश है कि हम वी आर ऑलवेज राइट एज ए बिजनेसमैन, कल को जो चीज करके हम सक्सेसफुल हो गए आज अगर वो चेंज हो गई है मार्केट में, अगर हम वही करके बैठेंगे ये इसका मतलब हम लोग स्टैग्नेंट हो चुके हैं। तो ये जो आप करोगे ना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरलाइजिंग, वॉट एवर योर प्रोडक्ट इज, इफ यू आर गोइंग टू शेयर इट विथ समवन, if you're going to, I'm talking about internal customers now, internal customers मतलब हमारे एम्प्लॉइज, हमारे वेंडर्स, हमारे जो स्टाफ है, इवन जो झाड़ू वाला अगर है, सफाई वाला, तो वो भी एक इंटरनल कस्टमर है, और उसको भी जैसे एक्सटर्नल कस्टमर को आप मान सम्मान के साथ ट्रीट करेंगे वैसे ही करना जरूरी है। अगर उसे गलती होती है तो उसको 4 लोगों के सामने डांट के कभी कुछ नहीं होने वाला, आप उसको कैबिन में बुला के आप उसको एक्सप्लेन करें कि अगर ये नहीं करना है ऐसे करना है, और अगर बार बार फीडबैक देने के बावजूद भी वो वैसे ही कर रहा है जैसे आपका खून डल रहा है सर, तो उसको दफा करिए, वो सुधरने वाला है नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो ये जब आप वेंडर सिलेक्शंस वगैरह आप करते हैं तो आपका बेसिक प्रोडक्ट का एक ऑनेस्टी है ना जो प्रोडक्ट में आपके, वो आई आपकी वजह से। जैसे एमएफसी डज नॉट यूज पाम ऑयल एज ऑफ टुडेज डेट, ना पहले कभी यूज किए हैं, हम लोग ऑलवेज सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। वी यूज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रुपए कम महंगा पड़ रहा है मुझे केएफसी के कंपैरिजन में, अगर वो चीज, या मैकडोनल्ड कंपैरिजन में, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं एक, जैसे सर ने बोला एज इज, मिनिमलिस्ट की ये वर्ड यूज किया, ये बात अलग है कि आपको मर्सिडीज वगैरह पसंद होगी किसी को तो डेफिनेटली लीजिएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैं पर्टिकुलरली ऐसी चीज करके काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें किसी का बच्चा खा के बीमार हो जाए। सो आपका प्रोडक्ट जहां यूज हो रहा है, एंड प्रोडक्ट जहां यूज हो रहा है, वहां पे ये डेफिनेटली सोचेगा कि इसको यूज करते समय किसी ऐसा नुकसान ना हो जाए कि जान माल की प्रॉब्लम हो जाए, हानि हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये सारी चीजों से आपने सक्सेसफुल बिजनेस लाया, फिर उसी मॉडल को आपको रेप्लिकेट करना है, इतना याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नदी के भाव के ऑपोजिट तैरना है, डूब के मर जाओगे आप, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन नदी के साथ बहते हुए भी जाना नहीं है, हमें जहां जाना है वहां पे ही जाना है। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग करते 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 वहां पे पहुंचो। सो वेंडर्स के साथ आपको ज्यादा पता है, क्योंकि मैं, देयर इज नो सक्सेसफुल फॉर्मूला फॉर दिस फ्रैंकली स्पीकिंग। बट अगर आप गलत भी चले गए तो थोड़ी फर्क पड़ रहा है। आप थोड़ी ना मरने वाला वेंडर गलत आ गया तो थोड़ी ना विष्णु भगवान आके बोलेंगे भाई तेरा नंबर लग गया, तूने गलत वेंडर चूज किया, चल तू मर गया, अभी तेरा बिजनेस बंद। ऐसा भी नहीं होने वाला है। सो डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज एन नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज एन नेक्स्ट टाइम।
आपको बस खाली जब तक जाने आपको वो एक नेक्स्ट करते रहना चाहिए. सो कम अप, ये आप जब ये एक्टिवली सोच के करोगे ना तो आपको बहुत आसान जाएगा. क्योंकि सेल्स में एक कहावत है, हर चाबी अलग, हर ताला अलग. सेम टू इन आदमी, दो भाई हुए हैं तो वो लोग भी सेम थिंकिंग नहीं रखते. एज सिंपल एज इट. सो ऐसा मत सोचना कि लास्ट टाइम वो वेंडर ने ये बोला था और वो ईमानदार निकला, ये भी निकलेगा. नहीं 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 नहीं. ये फर्क है जॉब करने वाले में और आप में. जॉब करने वाला सोचेगा सेठ का माल है भाई, ये हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, टिक हो गया, हाँ भाई चल निकल. आप ट्रेंड सेटर हो, आपको लोग फॉलो करने वाले हैं. तो आपको हर स्टेप वापस से जो 100 चीजें की थी वो वापस से करनी है. इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 100 में कम करके 70 पे लाओ और 30 नहीं ऐड करके वापस 100 बनाओ. तब जाके आपकी चीज इंप्रूव होती जाएगी. जैसे हम लोग पहले एमएफसी में मशीनरी की वजह से, एमएफसी का सक्सेस इसकी वजह से हुआ फ्रेंचाइजिंग में, इज बिकॉज जो पैरेलल ब्रांड्स, एक तो था केएफसी जो बहुत सुपर एक्सपेंसिव है, 1.5-2 करोड़ का मार्केट है उसका, एक आउटलेट बनता है. हमारा एक आउटलेट उस टाइम पे बन रहा था 25 लाख के रेंज में. दैट्स इट. और उसकी वजह से लोगों का अप्रोच फार इजी पडायला लागला आम्हाला एकतर. मग मी बोललो याला यार हे आता होत आहे, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट दिस इज गोइंग टू कीप हॅपनिंग, because there are definitely someone else is going to think on the same lines. There are many fried chicken छोटे छोटे brands है, 1 outlet 2 outlet, ये ऐसा वैसा वाले भी लोग हैं जो आते हैं और जाएंगे. So we will always have to be on the edge. So जो हमने डिफरेंस लाया वो ये लाया कि हमने सिर्फ फ्रेंचाइजी फी चार्ज करना चालू कर दिया, फिर रॉयल्टी कट आउट करी पिक्चर से, फिर आपका जैसे ये तो अभी हमने कोविड के टाइम पे रॉयल्टी ये की है बिकॉज इट्स अ मार्केट रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली. बट जो सेटअप है रेस्टोरेंट का वो फ्रेंचाइजी का ही खुद का फर्नीचर वाला करेगा, वो ढूंढ के लाएगा. तो ही हैज अ कॉन्फिडेंस क्या हाँ बॉस ये मेरे मार्जिन इसमें नहीं लेगा. तो एक ट्रस्ट इशू आपका क्लियर हो गया उसके अंदर. But then there are many other factors, Yogesh sir, जो you will have to always be up to date with what is happening around you. So if I understand, Ideally, it Sagar, is two major outputs that I have now understood while you were talking. One is keeping the usability in point of view and the user in point of view. I mean, correct. मी फक्त ते थोडंसं जरा इंग्रजीत बोलतोय. Ideally because that's what my business is. I've trained myself to become a little polished. But what you're talking ideally is two things. No, only two things: usability and user. No, one more thing is important, the maker also. The maker, yeah. Who has to focus? The maker has to focus maker on user also. and usability. Wonderful, very nice. So that takes us to the next discussion now, and probably it is going to contradict to something that you say कि बहुत दूर का नहीं सोचने का. But MFC कहाँ जाएगी अगले 5-6 साल में, 10 साल में MFC कहाँ होगी? See, ideally now ये मैं बहुत दूर का मतलब I am saying कि there are people who calculate a lot. ये उनके लिए बहुत ज्यादा दूर का नहीं सोचने का. बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना, मेजर लोग एंटरप्रेन्योर जिसके लिए नहीं बन सकते या बन सकते नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, जजमेंट पास कर रहा हूँ. आई एम बीइंग जजी ओवर देयर. बट इफ यू ब्रिंग समवन टू मी आई विल अंडरस्टैंड कि ये एंटरप्रेन्योर नहीं बनने वाला है. और कुछ लोग बन नहीं पाते, बनना है फिर भी नहीं बन पाते, इज बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. वो लेके बैठ जाएंगे एक्सेल शीट, फलाना ढिमकाना, या ऐसा वो वैसा, रा और फिर एट द एंड ऑफ द डे करेगा तो कुछ भी नहीं. 50 बार हर साल फोन आएगा, मेरे को यहाँ पे आउटलेट ओपन करना है, मैंने ये देखा है, वहां पे कस्टमर फॉल इतना है, इतनी एवरेज सैलरी है, ये सर्वे आया है, बट आज तक उसने फ्रेंचाइजी ली नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डीमीनिंग नहीं हूं मैं उसके लिए, बट ये उसका पर्सनल लॉस है दैट ही इज नॉट डूइंग इट. आपको in business there are no risks. Actually that is a very wrong statement that has been put ahead. Again, जैसे बोलते हैं ना कि humans are social animals. I totally don't believe that. It is one of the most false statements that is taught in the schools. We are not socials. We don't even qualify to become animals because animals are way better on the planet. So वैसे एक statement है, business में risk होता है बॉस. भाई
आप सीढ़ियों से उतर के टाइम नीचे उतर गए ना, उसमें भी रिस्क है बहुत बड़ा, कहीं फिसल के गिर गए, सर फट गया तो आप रोज जिंदा रहोगे कि नहीं, उसमें भी तो रिस्क है यार। ट्रेन में आ रहे जा रहे हो, कार में आ रहे जा रहे हो, घर बैठे बैठे पब्लिक को हार्ट अटैक करके पीपल आर जस्ट falling to their death. Now there is a funny part which is related to COVID also. One of my lecture I don't know why, but I told my one of the engineering colleges on whose I am a panelist as a career advisor at a engineering college. Emotion and economics need to match decisions. Yes, yes, yes. So we are a equation, no? At the end of the day, humans are equations. Frankly, we are equations. We get manipulated very easily. Someone just learns a few factors about us, they just manipulate those values and we get, हम equation हमारा खराब हो जाता है. So this is same for the others also. So मैं ये कह रहा हूँ ना कि business is not risk ideally. Business is about calculated risks, just like life. Business is life, business is people relation management, that is business. व्यवहारच आहे तो, जो तुम्ही घरच्यांशी पण करता. आता आईला तुम्ही 4 वेळा बोलाल ही चपाती अशीच झाली, ती चपाती वैसी हुई ये रोटी ठीक ही नहीं है, माँ मारेगी चप्पल फेंके, बोलेगी ना तेरा तू कर ले करके. ऑब्वियसली सेम एम्प्लॉय को आप पीछे पड़े रहोगे डंडा लेके, उसको कंप्लेंट करने से अच्छा ना आप है ना सोल्यूशन देना सीखो. दैट इज द इजीएस्ट वे आउट. कोई चीज कर रहा है ऐसे पर्टिकुलरली, तो वो क्यों कर रहा है वो उसको बता के देख लो. अगर वो कोलू का पहले नहीं सुन रहा है और आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉप पे हैं उनको ये देखना जरूरी है कि आपको कोलू का बैल भी जरूरी है, आपको गधा भी जरूरी है, आप घोड़ा भी जरूरी है, उसको सही प्लेस करना भी तो जरूरी है. आप कोलू की बैल की जगह पे घोड़ा लगा दोगे और वो फिर बोले वो परेशान हो जाएगा, वो काम कर करके उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि आईडी उसका नेचर ही वो है. कुछ लोग होते हैं जिनको इंसेंटिव्स वगैरह चाहिए होते हैं काम करते टाइम, आपको वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है. आपके वेंडर सिलेक्शन में भी ये प्रोसेस आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर योर इंटरनल कस्टमर्स. आप उनको भी कुछ दे रहे हो और वो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये आपका एक यू नो there's a relation between you, the customer relationship is there. So ideally MFC को ये target में, I'm not saying that we're not looking, we are already in talks with Sri Lanka, we are already in talks with GCC, we are in talks with Indonesia for going international. So our next step is going international, but at the same point in time एक वर्ड आया था मिनिमलिस्टिक इज, वो वर्ड आया था. मैं पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी, ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल नेम्स, उनसे भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है देश में, देयर इज नो डाउट, बट एक ऐसा नाम जो हर कोई जानता है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि करोड़पति, अब्जोपति, अरबोपति आप हो जाइए, नो डाउट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसे जीना पसंद करता हूँ, पर मेरा स्क्वायर फीट वाइज एरिया नहीं बढ़ता है. मैं जाते टाइम एक ही कार में जाऊंगा, मैं अजय देवगन की जैसे 2 गाड़ी पर बैठ कर जा नहीं सकता हूँ, कितना भी अमीर हो जाऊं. मेरी कार ज्यादा से बड़ी हो के वॉल्वो बस ही इतनी बड़ी कर सकता हूँ, या तो मैं ट्रेन खरीद लूंगा, और जाऊंगा बैठूंगा तो एक ही सीट पे ना सर, और ट्रेन जाएगी वहीं पे जहाँ पे मेरे को लेके जानी. तो जो ये रेस आप लगा रहे हो ना, ये जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स को स्टॉप करना, कि उनके पास वो गाड़ी है, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये टीवी लाया है, उसके पास आईफोन है. आपके यूज का क्या है? आप क्या वो चीज यूज भी करने वाले हो क्या? लोग एसयूवीज खरीद रहे, देयर इज अ न्यू मार्केट फॉर एसयूवीज इन इंडिया. मैं आई गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्किंग मी, सर भाई सागर भाई गाड़ी लेनी है, बोला आपका यूज क्या है पहले वो बताओ. यूज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं सिटी में घर से इधर जाने वाला हूँ या वहां से. एसयूवीज यार, आप इफ यू गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, इफ यू गोइंग, आपका काम आउट ऑफ सिटी है, तो आप फिर वो लो ना. बिकॉज ideally we need to understand one thing, Yogesh sir, is what we will do is what how the planet will do, and we are not learning that even now. क्योंकि बॉस सल्यूट टू योर टेस्ट ड्रीम एंड नो, थैंक यू. सो मैं ये बोल रहा हूँ ना सर, कोई मर के वापस नहीं आया. मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने डेथ पे सर्वे कराया जैसे कोविड स्टार्ट हुआ ना. मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में नहीं जाऊंगा, व्हाट अबाउट इट, क्या है क्या नहीं है, व्हाट एवर इट इज वेरी सीरियस इशू. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वी फॉरगॉट
हम एक बहुत important aspect all the governments have forgot on the planet, and I will give you some figures which is very surprising. 1950 to 2020 is when the survey ended. जहाँ पे हमने सर्वे किया था, I've got huge data, Excel sheets भर के I analyzed all that, and it was done by a proper engineering college का team who did that. Oh, it nearly for a month we were doing a research, 1950 to current, and that is for 3 zones. India was year-wise. Rest of the zones were for every 5 years. So this is surprising that I will give you. Third world countries like Somalia, इनके डेटा लिए हमने. सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें हमने इंडिया को मिड पॉइंट रखा और उसके आसपास की कंट्रीज ली जो इंडिया जैसी हैं, श्रीलंका वगैरह ये वो, और एक डेवलप्ड कंट्रीज हमने ली. सो डेवलप्ड कंट्रीज में हमने डाले सारे टॉप 5, नॉर्वेजिया, स्वीडन, एवरीवन, वी पुट देम इन दैट ब्रैकेट एंड वी डिड अ सर्वे. द फनीएस्ट पार्ट इज दैट पीपल डाई. हम कुछ भी कर लो, पीपल डाई. We forgot that. हम भूल चुके हैं वो बात. हम अपने आप को, I don't know what everyone thinks, but I think we have reached a place where we are thinking that we will never die. So COVID happened in India. You know, the planning was done on basis. See, I don't want to get political, but yes, political decisions are those which are popular. And unfortunately India is there where there are more populist decisions ज्यादा होते हैं. जो पॉपुलर होते हैं वो डिसीजन होते हैं. बॉस, हमारा वो देश है जहाँ पे योगेश्वर जस्ट मी तुम्हाला एक वाईल्ड गेस करायला सांगतो. मे बी आय थिंक यू माइट बी नोइंग इट. तुम्हाला माहिती आहे वर्षाला किती लोक मरतात? कितने लोग मरते हैं इंडिया में हर साल? एक अंदाजा. 1950, let's forget the world. I come to India. 1950 to 2020, every year on an average 98 lakhs, 96 lakhs every year is the lowest. Hello? Yeah, I'm listening to you. 96 lakhs is the lowest till now. The year we got independent, 30 करोड़ के आसपास की शायद कुछ आबादी थी. उस साल भी, वो साल सबसे ज्यादा मरे थे लोग. नियरली 1.25 करोड़ लोग मरे थे उस साल से लेके आज तक. हर साल 97-98 लाख लोग मरते हैं. और सबसे बड़ा जोक ये है, अभी सबको कोविड आंकड़े तो पक्का हो गए रहेंगे, क्योंकि हर किसी के पास ऐसे फ्रेंड्स है जो मतलब ऐसा अपना ये समझ रहे थे कि मैं रोज कोविड के आंकड़े ब्रॉडकास्ट करूंगा. सबको जिनको मालूम नहीं उनको भी भेजूंगा. मैंने सारे दोस्तों को बोला मुझे प्लीज ये स्कोरबोर्ड मत भेजा करो यार, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. Please don't send me these COVID figures. Unnecessarily you're spreading something which is useless. वो आंकड़े जान के क्या आप बच जाओ? नहीं. आपको जो बेसिक करना चाहिए, डिस्टेंसिंग, मास्क, ये करो ना यार. उसके इंफॉर्मेशन दो और खुद भी करो. सो जिस कंट्री में जो अभी बीच में भी आया कि सेकेंड वेव के टाइम पे फोटोज वायरल हुए, जो शमशान घाट के पिलर्स मेल्ट वगैरह हो गए. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो दुखद घटना है जिसके घर का जो जाता है, बट मेरा फंडा क्लियर. मैं जाऊंगा तो घर वालों को मालूम है, घर वाला भी कोई जाएगा तो मुझे मालूम है हाउ आई विल फील. मुझे एक सबसे बड़ी बात, कोई जाता है तो बुरा तो लगता है बॉस, लेकिन वो जब तक है, मैं उसमें बिलीव करता, जब तक वो जिंदा है तब तक मैं जान झोंक दूंगा उस आदमी के लिए. फिर वो जाने के बाद मैं खाली बुरा फील करूंगा, बट मैं ऐसा रोता नहीं बैठूंगा. दैट इज लाइफ एंड डेथ इज द ओनली यूनिवर्सल ट्रुथ आई बिलीव. एट इन इंडिया जब इतने लोग मरे तो दिन के आपको 25, उसको डिवाइड करो 30 के वजह से, द आंकड़ा कम्स टू 24,000 मिनिमम टू 28,000 दिन में लोग मरते हैं. ये वेरिएंस है हमारे यहाँ पे. और एक दिन कोविड का वो सारा चल रहा था न्यूज पे, कल इतने लोग मर गए, मरघट के बाहर लाइन लगी हुई है, ये है वो है. मैं आई वाज थोड़ा फंस गया. मैं कभी न्यूज देखता नहीं, आई अवॉइड न्यूज. आपको अगर खुश रहना तो न्यूज देखना बंद करो. तो वो मैं देखता नहीं हूँ न्यूज. तो किसी ने मेरे को, कोई आमचे एक ऑफिसर है त्यांनी सांगितलं, सागर आर यू जोकिंग. मैंने उनको कॉल किया. मैं बोला सर यार ये कल क्या हो गया इतना हंगामा. होता सागर आर यू जोकिंग, इट्स वेरी सीरियस. तुम देखो मेल्ट हो गया शमशान घाट, ये हो गया, लाइन लगी हुई है. बोला यार अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. आई जस्ट टुक आउट द फिगर, कितने लोग उस दिन 800 लोग मरे थे इंडिया में.
सो जिस कंट्री में ऑन एन एवरेज 24,000 से 28,000 लोगों के वेरिएंस में लोग मरते हैं, उसमें अगर 800 एक्स्ट्रा कोविड के ऐड हो गए तो शमशान घाट कैसे मेल्ट हो गए? आई डोंट नो। 24,000 मिनिमा है आपका, मैक्सिमम आपका 28,000 है, वेरिएंस सिर्फ 800 का आया ना सर उसमें, तो शमशान घाट मेल्ट हो गए कैसे? आई अंडरस्टूड, पक्का So, कोई तो बड़ा कुछ तो believe on the प्रॉब्लम fact. हुआ है कहीं पे। Believe on the facts. Believe on the facts. एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट यू डू। सो इसकी वजह से एक फैक्ट तो ये, न्यूज से दूर रहो, खुश रहो जब तक। और यस यू, मुझे कोविड होके गया है और लकीली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज मेरा इन्फेक्शन 7% वगैरह कुछ था काउंटेड, फिर भी आई डिड नॉट फील एनीथिंग। मे बी बिकॉज आप वर्कआउट करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, ये चीज तो आपको ऐसे भी करनी है, कोविड की वजह से नहीं सर, क्योंकि देश में ऑलरेडी कोविड से ज्यादा लोग तो हार्ट डिजीजेस और लंग कैंसर्स और आपका टीबी वगैरह इन सब बीमारियों से मरते हैं। सो सबसे बड़ा फैक्टर मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हर कोई मरता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट स्ट्रोक्स, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक्स। सो ये जो छोटा सा दिल है ना आपका, इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो मेडिकल वर्ल्ड आपको बताता नहीं है, कि इसकी ना लिमिटेड बीट्स है आपकी हार्ट की। देयर इज नो वे टू काउंट दोज बीट्स, बट इट्स अ मेडिकल फैक्ट कि आपके हार्ट के अंदर अगर 1000 बीट का मीटर है, वो 1000 बीट करने के बाद वो बंद होना है, तो आप कितने भी फिट रहो या कितने भी अनहेल्दी रहो, आप मरने हो, ठीक है? तो उस पर इतना लोड मत दो, क्योंकि ये सब आप देखोगे ना, तो जहाँ पे एक बीट जरूरी वो काम करने में, वहां पे आपके 2 से 3 लग जाएंगे, आपका मीटर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उस पर इतना लोड मत दो, चिल करो, थोड़ा घूमा करो। और एक लास्ट, मैंने एक सर ने बोला था, मैंने आई वाज वेरी, इट वाज, मतलब इट इज नॉट हिज फॉल्ट, आई डोंट मीन टू डीमीन हिम, बट इट इज आवर सोसाइटी। कुछ क्लीशेज हैं हमारी सोसाइटी में कि बिजनेसमैन है तो वो बहुत बिजी होगा, वो फ्लाइट से उड़ रहा होगा, ट्रेन से नहीं जाएगा, वो कार से जाएगा, और वो फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा, फिर बीबी झगड़ा करेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो प्लीज ये बोलने का मौका नहीं आना चाहिए कि कोविड की वजह से मैंने फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दे पाया, मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। नहीं सर, कोविड हो या ना हो, फैमिली को टाइम दे दिया करो उतना जितना मिनिमम जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज अबाउट बैलेंस एंड इट हैज टू बी आपका पर्सनल टाइम, आपका पर्सनल ग्रोथ, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम, ये सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए। तो आप ये कोविड की वजह से ये आप करना सीख जाओगे सर, ये बैलेंसिंग एक्ट थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना आप, तो मेरे को लगता है आपकी नैया पार हो ही जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके मरने के बाद गोल्ड मेडल मिलता है या फिर आप पकोड़े तले जाते हैं, वो तो पता है नहीं किसी को। सो वो इतना लोड मत लो सर, बस थोड़ा सा मजे करो, मस्ती करो, दोस्तों को फोन करो, हंसो, गालियां दो दोस्तों को, हैंग आउट करो, घूम के आ जाया करो। हर दिन में नहीं, चलो हफ्ते में एक बार तो कोई ऐसी जगह पे जाके आ जाओ जो आपने कोई पहले देखी नहीं। आपके शहर में कोई तो एक आधी ऐसी गली होगी जहां पे कभी गए नहीं, वहीं चल के प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। एंड कोई एक स्पोर्ट्स परस्यू कर लो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, या फिर थोड़ा वर्कआउट कर लो, कुछ तो करो। फिजिकल फिटनेस इज अ मस्ट, is definitely a must if you are in any kind of business, uses up your energy, channelizing hota hai body, because brain is incapable of differentiating between emotional and physical pain। ब्रेन के पास कोई ऐसा अलग मीटर नहीं होता, दिल टूटने पे जो करके दर्द होता है, वही दर्द आपको जिम में भी होगा। सो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ये है कि वो दर्द झेलने की कैपेसिटी आपको फिजिकली आ जाती है। सर ज्वाइन हिम फॉर अ कपल ऑफ बियर्स, यस यस सर डेफिनेटली। मैं दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी आई विल जॉइन यू, मैं आपका खाने में आपका हाथ बटाऊंगा। सो I think दिस इज व्हाट यू डू। true. You have given a beautiful definition, Sagar, of entrepreneurship. While I was observing, listening, understanding, I think the audience also would have understood that you don't have to do things seriously. You have to do things sincerely. I think there is a genuine amount of sincerity in this entire discussion.
You notice that we always keep this as a free flowing event. There's no question that is asked. I keep navigating the entire flow, but the fact still remains it was very sincere. I think it is 8:18 and we have last 2 minutes to actually move forward. But the house is open for questions. You can type your questions if anybody has. Very importantly, what is your message to the first generation entrepreneurs whose second generation is coming up? And we have, as we said, we started on time, we end on time. Give that message to it कि यार अगर धंधे वाले का बच्चा है ना, तो उसने अगर वो पापा ने क्या करना चाहिए, because you are the first generation and at the age of 35 you've been able to create a national company. What is your thought to it? Go ahead. मोबाइल से दूर रखो बच्चे को, पहली बात तो। नहीं, इनके बच्चे सबसे आपके पहला- ऊपर के हैं, तब तो अरे बाप impossible रे, है। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो सर। बीवियों से क्वेश्चन पूछ लो, उनको, उनके हाथ में जो भी है वो सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो भी क्या कर सकते हैं। सो अगर आपके पास, देखो मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा भांजा है, बहन का बेटा, अभी अगर उतने साइज का किसी का बच्चा है, उस साइज में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट, तो उसके पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल्स, बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम, बी फ्रैंक विद देम, उनको खेलने दो। क्योंकि आप आज सक्सेसफुल हुए हो ना, बिकॉज आप मोबाइल लेके नहीं बैठे थे जब आप छोटे थे। तब आप सक्सेसफुल हो गए हो क्योंकि आपके टाइम पे आप व्हाट्सएप पे दोस्तों से हाय हेलो नहीं कर रहे थे। उस टाइम पे आप दोस्तों के साथ घूमते थे, इसकी वजह से यू बिकेम अ पीपल पर्सन। योर रीजन दैट यू आर सक्सेसफुल, इवन इफ यू आर अ फेलियर, ट्रस्ट मी, इट इज समथिंग दैट यू डिडंट डू एज ए चाइल्ड। आप चाहते हो, आप पहली बात तो ये है ना कि आपने अगर 100 मार्क्स में से 100 मार्क लाए तो जरूरी नहीं है आपका बच्चा 100 में से 100 लाए। तो डोंट पीयर प्रेशराइज देम। एंड मैं ये बोलूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल में एक यहाँ पे बेकरी है, पुरानी बिक्री गांव की। अचानक से उस दिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं बाइक पे इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था, तो मैं बोला यार आज यहाँ से पाव लूंगा, कड़क पाव, जो मेरी बहन का एक जमाने का फेवरेट है। तो मैंने सोचा उसको दिल्ली में फोटो भेजूंगा क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर पाव नहीं मिलता, महाराष्ट्र में छोड़ो मुंबई के बाहर ढंग का पाव नहीं मिलता। तो मैं उसको जलाने के लिए, आई डोंट इवन लाइक दैट, मैं इसे फोटो निकाल के उसको भेजूंगा। मैं वहां पे गया, मैंने वो ब्रून लिया, मतलब कड़क पाव बोलते हैं जिसको, नॉर्मल पाव लिया। वो देते टाइम उससे एक पाव नीचे गिर गया जमीन पे। अभी ये बचा है, इसका बाप वो बेकरी पे बैठा करता था एक जमाने में। वो बच्चे ने वो पाव उठाया और अंदर रख रहा है साइड में, नॉट विद द अदर पाव। तो मैंने बोला यार क्या कर रहे हैं, दे इधर। बोलता नहीं सर वो अंकल वो नीचे गिर गया। मैं बोला तो बोलता नहीं ये अभी वापस बेकरी में जाएगा। मैं बोला बेकरी में क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे क्योंकि वो खराब नहीं हुआ है। हम तो वो राम भूत वाले जनरेशन, खराब नहीं हुआ है वो, ला इधर। तो बोलता है नहीं सर वो अभी बेकरी में चला जाएगा, वहां पे वो लोग उसको डिस्पोज कर देंगे। मैं बोला डिस्पोज नहीं करेंगे, किसी को खाने को देंगे, बराबर। तो बोलते हैं हाँ सर दे देंगे। मैं बोला तो मैं भी वो इंसान हूँ, मैं खा सकता हूँ, इधर वापस। फिर वो मैंने पाव वहां से लिया, फिर मैंने उसको भी वही बोला कि भाई तेरा बाप यहाँ पे बैठा करता था तो उस टाइम से मैं आता हूँ, वो किधर है करके। तो उसने बोला कि वो तो गाँव गए करके। सो ये जो है ना, ये फ्रैंकनेस मेंटेन करिए आप अपने बच्चों से। आपको जो बोलना है ना बोल लो, ये नहीं सोचो कि उसको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, जो भी है व्हाट एवर इट इज बोल दो। क्योंकि मरने के बाद अगर आपने बोलना चालू किया है तो फिर वो तांत्रिक मांत्रिक करना पड़ेगा उसको। तो आपकी आत्मा रूपी में उसे मत बात करो, जब तक हो तब तक उसको बोल दो जो भी है। और एक मिनिमलिस्टिक नहीं, बट मैंने बोला ना कि अंबानी जी भी 2 गाड़ियों में नहीं ट्रेवल करते, वो एक ही गाड़ी में ट्रेवल करते हैं। आप 10 गाड़ियों के ओनर हो जाएंगे, लेकिन आप जाओगे तो एक टाइम पे एक ही गाड़ी में। और आपकी सबसे बड़ी, मेरा बच्चा है नहीं बट आई एम सेइंग अगर है तो आपकी सबसे बड़ी जायदाद आपका नेक्स्ट जनरेशन है सर। आप दुनिया में ताजमहल बांध के अगर किसी बेवकूफ के हाथ में उसकी चाबी दोगे ना तो वो बर्बाद कर देगा। उससे अच्छा विलन बन जाओ, जहां जरूरी है वहां विलन बन जाओ, नो इश्यूज। जहां उसे बुरा लगे लगने दो, क्योंकि दुनिया उसको मिलके थप्पड़ मारे उससे अच्छा आप मार दोगे घर पे तो वो बेटर है। चाहे वो उसके बाद, क्योंकि वो बच्चा है, याद रखना। अगर ऐसा कुछ उसने किया, पहली बात तो मारो मत,
लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया है जहाँ पे मारना, मैं आई बिलीव इन नेसेसरी इविल। अगर कोई मेरे करीबी है, खाली बच्चा ही नहीं, मैं तो अपने करीबी दोस्तों को भी, अगर कोई वो गलती कर रहा है जिससे मेरी दोस्ती टूट जाए, but अगर मेरे वो करने से वो सही, उसका सही होगा, तो मैं वो कर देता हूँ। तो आई थिंक आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क यू, बिकॉज आई एम वेरी फ्रैंक। मैं सीधा मुंह पे बोल दूंगा भाई ये करो मत करके, ये आपके लिए सही नहीं, फिर उसका दिल टूट जाएगा तो भी चलेगा। पर अगर उसका भला हो जाएगा, लोग मुझे बोलते हैं हाँ कभी ना कभी तो फिर वो तेरे को याद करेगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं तब तक जिंदा रहूंगा तो वो आके बोलेगा सॉरी, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, अरे छोड़ना जाने ना, चल जाते घूमने करके, ये बोलूंगा ना। और अगर नहीं आएगा तो वैसे भी तो मैं घूम ही रहा हूँ, हाउ डज इट मैटर यार। घर पे आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा सर। इफ ही इज डूइंग रॉन्ग, और उसको रेडीमेड मत देना कुछ भी सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको सीईओ मत बनाना या नेपोटिज्म फलाना ढिमकाना, दैट इज ऑल बुलशिट। वो कंप्लीटली समथिंग विच इज ऑन द ट्विटर, नेपोटिज्म ये वो नहीं। मैं क्योंकि ये मानता हूँ ना कि आदमी गरीब घर में पैदा हुआ या अमीर घर में पैदा हुआ, वो कोई लेना देना नहीं उससे। इट इज नियति का खेल है, वो उस इंसान की गलती नहीं है। बट अगर जिस गरीबी में वो पैदा हुआ या जिस अमीरी के लेवल पे वो पैदा हुआ, उससे निचले वाले लेवल पे मरा ना, तो वो उसकी गलती है, फिर वो उसकी गलती है। सो अगर आपके पास बचा है और उनको एक बताइएगा, हमारे जिम लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होता है कोर जो पावर जनरेट करता है, लेग्स, बैक, लोअर बैक वगैरह। एक होता है पुशिंग मसल जो चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर बोलते हैं जिसको। और एक होता है बैक बाइसेप जो खींचने का मसल होता है। ये 3 मसल्स के हिसाब से आपको जीना भी है, आपको प्रॉब्लम्स को पुश करते हुए आगे बढ़ना है। सेम टाइम पे उसी पावर के साथ पीछे मुड़ के, जो पीछे है ना सर, इफ यू आर अर्निंग 1 करोड़ that's good, but if you are capable of earning 2 crores while doing all this मस्ती मजाक भी करते हुए भी, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मिला तो करो, क्योंकि फिर वो आप वहां पे जो पीछे लोग हैं ना, उनको खींच के पुलिंग करने में वो आपको मदद करेगा। मैं लोगों को कहता हूँ कि देयर आर समथिंग्स, वो जो आपके बच्चे हैं ना, ये जो इनको बताओ कि देयर आर समथिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड, व्हिच इज फैमिली। सिग्नल पे खड़े बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता सर कि कौन सी स्कूल में जाएगा, बड़े पार्टी में जाएगा, ऑर्फेस के पास ऑप्शन नहीं होता सर, ही जस्ट हैज टू डू। सो वो ट्रीटमेंट मत दो, बट एटलीस्ट मेक देम अवेयर कि बॉस ये चल रहा है। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज अगर ये बेसिक सेंस उसमें आ गया ना, तो आपके बाद आपका नाम रोशन करके जाएगा वो, फॉर श्योर। क्या बात, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने उसको रेडीमेड दे दिया तो नहीं करेगा। True. No, I think it has been a very frank, open, honest conversation, Sagar, and I'm sure a lot of fathers and mothers who are in this session, who are listening, this recorded session as well, will go live. But more importantly, what you've told is live joyfully. Harshal said this: live joyfully, enjoy your dream, be sincere about what you're doing, and move forward. So I think on this note, it is 8:27. We're just about to finish. And I should thank you from the behalf of entire community. Thank you very much for joining in. Frankly sharing the Mumbaiya style, जे आपण नेहमी म्हणतो, आपण तसेच होतो, तसेच आहोत, तसेच भाऊ. आणि त्यात काही बदल करण्याची गरज नाही. So great. I mean, happy to have you once again. Happy to be sharing the entire thing. And I'm sure as you move forward, God will bless you. All of us are together. May you become international. May you go all the dreams that you complete, and keep sharing this knowledge to everybody. Thank you very much, Sagar, for joining in at Arise. Thank you. धन्यवाद. Sure. Thank you. Bye. Bye. Thank you.